हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अपना इन्होंने माइक ही ऑन नहीं किया है। इन्होंने माइक ही ऑन नहीं किया है। अरे क्या हो गया है? हाँ, ये यहाँ पे था। ये उनके माइक बंद है ना। ये क्या आ रहा? लॅपटॉप वरनं का नाही करत हे सगळी इथे ये छोटी छोटी जे काय करतो सगळं. अरे अभी तक स्कूल नहीं लिया ना मैंने। माइक ही बंद करके रखे ना। काजल, अरे तू बोलतं तरी त्यांना आवाज येतात. त्यांना बोलून सांग ना मी माईक ओपन करा. हेलो काजल, माइक ऑन करो अपने। हाँ बेटा, माइक ऑन करो। और कितने लोग अभी ज्वाइन हुए हैं? 2-4 लोग ही दिख रहे बेटा। हाँ, तो यही प्रॉब्लम आता है ना। चलो शुरू करें क्या? हेलो, शुरू करते हैं बेटा। हाँ बोलो। अब देखो, यही तो प्रॉब्लम आता है। हाँ, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं ना, अब जितने लोग ज्वाइन है उतने ही। फिर इसका वीडियो बना रही हूँ मैं, तो वो डाल लेंगे अपन। तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू आवर टुडेज क्लास. In our today's class, we are learning about the second part of life processes in living organisms. So, here, what we have learned in the earlier class, we have to think over it. So, students, what we have learned in the earlier class? क्या पढ़े बच्चों हमने पिछली क्लास में? थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? यस, बोलिए। In our yesterday's class, we have learned about the sources of our food. From where do we get the different components of the food, such as carbohydrates, fats, proteins, and how much energy will be consumed by taking the carbohydrates, fats, proteins, etc. So, there are different systems. There are different systems for performing the various types of activities, such as digestion, respiration, etc. So, in our today's class, we are going to learn about the respiratory system. So, students, you all are familiar with this model. Is that clear? You all are familiar with this model from the lower classes. So, this is the very simple model of lungs. So, these two balloons are the lungs. Here, the diaphragm. This portion is the diaphragm. And this is called the trachea. And these two lungs, they are joined together, the trachea. So, students, this is the function when the diaphragm is pulled down. See the position of lungs.
When we move back to the original position, it will collapse again. See, is that clear, students? Yes. So students, let's see what is the structure of our respiratory system. So students, see here, this is human respiratory system. So here, see, this is the nasal cavity, nose hairs, and from here it is the pharynx portion. So it is divided into three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So this constitute the pharynx. ये सब क्या होता है बच्चों? Pharynx. Now here this is called the trachea. Then here it is the larynx box. And now this trachea opens into two sides, and these two sides are called the, see here students, right lung, left lung. So these opens side like the branches. ये branches की तरह open होती हैं, जिन्हें हम alveoli कहते हैं. What we call, students, it is the alveoli. So this is the diaphragm. Here you see this portion is the diaphragm. So here in your textbook also there is given the diagram, and you have to label the diagram, and you have to label the diagram. So students, this is our homework. You have to do and recall our previous knowledge, that how the respiratory system, what is the structure, how it helps in the process of respiration. So in your book diagram is there, and you have to label. Once again I am repeating: nasal cavity, then pharynx, larynx, then trachea. It opens into the two lungs, right lung and left lung, and these two are joined with the help of diaphragm. Is that clear, students? This is all about the respiratory system. And here also you see one structure that is called epiglottis. So it is a flap like structure. So when we eat the food, this flap gets closed, and when we respire, it gets open. So students, here you have learned all these things in the lower classes, how this epiglottis helps in the process of digestion as well as in respiration. So students, here this is the structure of the respiratory system. Okay, how many lungs are there? Trachea. Then they open into two lungs. They are called, what they are called? Alveoli. Sac-like structures are visible there. So here in alveoli, what happens? Exchange of gases takes place. What happens, students? Exchange of gases means giving of carbon dioxide and taking oxygen. So here students, I am asking question this for you. What is respiration? What is respiration and how it occurs? So students, in living organisms, respiration occurs at two levels. One at the body level and second at the cellular level. So body level means taking of oxygen and giving out carbon dioxide. So students, this is the body level. Repeating once again, फिर से मैं बोल रही हूँ, taking of oxygen and giving out carbon dioxide. So this is the exchange of gases between our body and our surrounding. So here this body level respiration is shown with the help of this model, and you are most familiar. आप सभी इस मॉडल को अच्छे से जानते हैं ना बच्चों? जानते हैं ना बच्चों? Yes. So this is the body level in which gases of exchange takes place.
Or next is the cellular level. Means foodstuffs are oxidized with or without the help of oxygen. So there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. So students, aerobic respiration means respiration process with the help of oxygen, and anaerobic means respiration process without oxygen. That is called anaerobic respiration. So students, again, what is the structure? What is the structure and formula of glucose? Just we have read in our earlier classes, हमने पहले पढ़ा है. So students, this is your question. Write it down in your notebooks and tell me, what is the formula? Yes, C6H12O6. Good. So tell me, how many carbon atoms are there in a glucose? Glucose के फॉर्मूले में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6. Yes, hydrogen 12. Then oxygen again 6. So here we have counted the number of atoms in the glucose. So next question, which type of chemical bonds are present in the between these atoms? We have learned the carbon compounds in the 9th class also. हमने 9th class में भी 9वीं कक्षा में भी ये पढ़ा है. तो बच्चों, there is a covalent bond, यानी सहसंयोजकी बंध. कौन सा होता है बच्चों? सहसंयोजकी बंध. Then third question, what happens actually when a molecule is oxidized? जब ऑक्सीकरण होता है किसी अणु का तो क्या होता है? Yes, it loses electrons and positive and gains a positive charge. माने इलेक्ट्रॉन खोता है और पॉजिटिव चार्ज लेता है. So students, so these are some of the questions which are also given in your book. So students, what happens? Carbohydrates of the food that we eat, that we consume, it is mainly utilized for the production of energy. So for this purpose, what happens students? Glucose, that means carbohydrates, that are oxidized step by step with the processes. So students, this type of respiration is called cellular respiration. Means this process occurs in our cell part, and the part is the mitochondria. So these all process, it occurs in the cell structure. So students, we see further, cellular respiration occurs in the living organisms by two methods. Again same, aerobic respiration and anaerobic respiration. So students, here oxygen is involved in aerobic and oxygen is not involved in anaerobic. So oxygen is involved in aerobic respiration. So let's study what about the aerobic respiration. तो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स अनऑक्सी श्वसन. तो अब ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी स्टेप्स में होता है ये हम देखने वाले हैं. तो बच्चों, मैं ये बता दूं, जो हिंदी मीडियम के ए वाले बच्चे 10th ए के भी ज्वाइन हुए हैं, वो लोगों के लिए टर्म्स लगभग समान ही है और कुछ कुछ जो नहीं है वह मैं आपको बोलते जा रही हूँ. तो आप उसको फॉलो करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक्स भी साथ में रखेंगे. ठीक है. तो इस तरह से बच्चों, देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल. सो स्टूडेंट्स, we see what happens in glycolysis. So first of all, I want to tell you, you have all learned about the structure of a cell. So cytoplasm is a part of a cell. So the process of glycolysis, it occurs in the cytoplasm. So here what happens? Glucose molecule is oxidized step by step and 2 molecules of pyruvic acid, ATP, NADH2, water, these are formed. So students, further
The molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into two molecules of acetyl coenzyme A. हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये नाम वही रहेंगे कि पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड के बाद फिर से ये कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में. सो 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide they are released during this process. तो इस प्रोसेस से क्या होता है बच्चों, 2 molecules NADH2 के और 2 molecules कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो ये हो गया बच्चों ग्लाइकोलिसिस. बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और इसके जो पॉइंट्स हैं वहाँ आप लोग जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डालते हैं तो आप लोग कॉपीज में लिख लीजिएगा. तो पॉइंट्स लिखने से लर्न होता है अच्छे से. नेक्स्ट स्टेप है बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. सो स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस ट्राई कार्बोक्सिलिक का शॉर्ट फॉर्म है TCA. इट हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो अभी हमने शब्द लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल लाइकवाइज द साइटोप्लाज्म. सो इट द प्रोसेस ऑफ TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यह होती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में. अब यहाँ होता क्या है, 2 molecules of acetyl coenzyme A produced from pyruvic acid and enter the mitochondria. जो ग्लाइकोलिसिस में बना है एसिटिल कोएंजाइम में वह कहाँ जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है. देन एसिटिल कोएंजाइम A दिस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसका थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस. तो इनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो कुछ रिएक्शंस होती हैं. द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस TCA साइकिल कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिल कोएंजाइम A, ATP, NADH2 एंड FADH2. तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं. अब यहाँ पे आगे क्या होता है बच्चों, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD जिसको बोलते हैं, ये जो है ये कन्वर्ट होता है और ये बनता है फिर NADH2. उसी प्रकार से FAD जो होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इट इज कन्वर्टेड टू फॉर्म FADH2. आपके बुक में ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं तो इनके शॉर्ट फॉर्म्स और लॉन्ग फॉर्म्स जो हैं आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं. तो बच्चों यहाँ पे जो होता है रिएक्शंस होती है उसी प्रकार से जैसे FAD से FADH2 बना, NAD से NADH2 बना. सिमिलरली GD मीन्स ग्वानिन डाई फॉस्फेट, guanosine diphosphate, it is converted into GDP means guanosine triphosphate which is equivalent to 1 ATP. जो किसके बराबर होता है, 1 ATP के बराबर होता है. So the cyclic reactions of tricarboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Krebs. So this cycle कौन सी, TCA means tricarboxylic acid cycle is also called as Krebs cycle. So students, let's move further. Here we have learned how NADH2, how FADH2 and GTP, it is equal to 1 ATP, how these are formed. So students, अभी हमने देखा कि यहाँ पर NADH2, FADH2 और GTP जो कि 1 ATP के बराबर होता है या किस तरह से बना है. तो ये हो गया बच्चों हमारा TCA साइकिल और इसको हांस क्रेब्स साइंटिस्ट ने सारी रिएक्शन स्टडी की थी. ही स्टडीड ऑल दिस रिएक्शंस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हम तीसरे इस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब यहाँ होता क्या है बच्चों, देखिए जो NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स बने, कहाँ बने, ग्लाइकोलिसिस में और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पार्ट वहाँ पर ये होती है. सो ऑल दीज प्रोसेस, ऑल दीज स्टेप्स आर फॉलोड इन द organ in the part of a cell that is called mitochondria.
So each molecule of NADH2 it yields 3 molecules of ATP. यानी एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 molecules of ATP बनते हैं. Also 1 molecule of FADH2 may it yields 2 molecules of ATP. तो एक FADH2 से कितने बनेंगे बच्चों? 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे. और NADH2 के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे? 3. तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 5. सो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे NADH2 से 3 मॉलिक्यूल्स ATP के बन रहे हैं. FADH2 से कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं. तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 बने हैं. तो ये सब कहाँ हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स हैं. पर होता क्या है कि यदि किसी कारण से ये प्रोसेस नहीं हो पाती है तो क्या होता है बच्चों? क्या होता है ये? कभी हमें भूख लगती है, कभी एक्सरसाइज ज़्यादा ओवर हो जाती है, फास्ट रखते हैं, तो उस समय ये होता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तब लिपिड्स और प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से फिर से वही प्रोडक्ट बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए. तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोटीन से क्या ब्रेकअप होगा? अमीनो एसिड, जो हमने पिछली क्लास में देखा है. और लिपिड्स यानी फैट्स को ही लिपिड्स कहा जाता है. सो लिपिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं? दे गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स. सो स्टूडेंट्स, this is all about the electron transport chain. So all these process they are occurring in the mitochondria part of a cell. So let's move further. I hope you all are understanding this about the 3 steps: glycolysis, tricarboxylic acid cycle and electron transport chain. So let's move further. What is ATP? ATP क्या है? इसका पूरा नाम है, the full form of ATP is adenosine triphosphate. हिंदी में भी आपको ऐसे लिखना है, adenosine triphosphate. So it is a nitrogenous compound and it is formed from adenine, pentose sugar which is called ribose and 3 phosphate groups. So here ATP is formed from adenosine ribonucleoside. Once again I am repeating, it is a nitrogenous compound formed from adenine, pentose sugar means ribose and 3 phosphate groups. So ATP is formed from adenosine ribose nucleoside. So the full form is adenosine triphosphate. So ATP is an energy molecule. So students, energy is stored in these bonds. And which type of bond? Just we have learned. It is a covalent bond. The bond which is present between these phosphate groups is a covalent bond. So ATP is stored in these cells. And as per our need, these bonds are broken and energy is derived. So ATP is called as the energy currency of the cell. So then ATP it gets converted according to our requirement. जैसे भी हमारी आवश्यकता होती है, जैसे हमें खेलना है, पढ़ना है, रीड करना है, कुछ भी काम करना है, तो वैसे हमको फिर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. So students, I hope you all understood about the aerobic respiration. It occurs in 3 steps. Let's see students one thing. Glycolysis, this is process which occurs in the cytoplasm of a cell and it is studied by 3 scientists, Ambeden, Mayerhof and Pans. So this glycolysis is also called Ambeden, Mayerhof, Pans pathway. तो इस ग्लाइकोलिसिस को हिंदी में भी यही नाम है बच्चों, एम्बेडेन मेयरहोफ पांस पाथवे मीन्स EMP पाथवे. ये शॉर्ट फॉर्म है, तो क्वेश्चंस आपको जब पूछते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, तो आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे. नेक्स्ट स्टेप ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. 3rd स्टेप है बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, दोनों एक ही हैं. And these all occurs
in our cell part, that is cytoplasm and the mitochondria. So let's move further, students. Anaerobic respiration means ऑक्सीश्वसन, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स, अभी हमने बात किया था पिछले क्लास में भी और अभी भी कर रहे हैं कि जो हम ह्यूमंस है और एनिमल्स है, रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं ये बॉडी लेवल पे द रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इन 2 स्टेप्स, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये जो बॉडी लेवल पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में बात कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होना है। सो रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी, इट इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस and it takes place by the oxidation of carbohydrates and the other foodstuffs. So students, here I want to tell you that some higher plants as well as the animals, it requires oxygen in order to respire aerobically. But many bacteria, some seeds also, they respire anaerobically. And some submerged plant also, means कुछ आधे जमीन पानी में तैर और कुछ ऊपर पानी के तैरते हुए। तो ये भी सब कैसा करते हैं बच्चों, अनऑक्सीश्वसन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं। और हमारे बॉडी में भी बच्चों जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जो होता है हमारी मसल्स के द्वारा यहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं थकान आती है, टायर्डनेस लगती है, सो यहाँ पे ये होता है कि ड्यू टू दिस कन्वर्शन इनटू द लैक्टिक एसिड, तो ये किस में चेंज हो जाता है बच्चों, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और जिसके कारण हमको थकान महसूस होती है, वी फील टायर्ड। सो ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, है ना, कम मात्रा में ऊर्जा बन रही है, जिससे, और क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा है जिससे हमें थकान, हरारत महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीश्वसन में 2 मेन स्टेप्स आर देयर, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। तो इनकी 2 महत्वपूर्ण स्टेप होती है, एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है बच्चों फर्मेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, हियर देयर इज अ डिप्लीशन in the oxygen level in the surrounding and less amount of energy is obtained in our body. So pyruvic acid produced through the glycolysis or is converted into another organic compounds or alcohol with the help of some enzymes in this process, and this process is known as fermentation. अब कौन कौन सा एंजाइम्स होते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे यीस्ट है, फिर ब्रेड, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बनने की क्रिया है, दे ऑल अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और 9th क्लास में हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी पढ़े हैं, जैसे कि हम इडली डोसा घर में बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उस पेस्ट को हम कुछ समय तक रखते हैं, तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस होती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ रेस्पायर करते हैं, पढ़ा था ना हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में 9th में, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस होती है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइक्रो करते हैं वह होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द aerobic respiration and anaerobic respiration, and in your textbook also there is a flow chart given about the aerobic respiration and aerobic respiration. You study these flow charts with the help of making these in your textbook, from in your notebooks from the textbook. तो जो आपकी बुक में दिया है और उसको आपको कैसे करना है, मैं आपको भी टेस्ट पेपर बना के भेजूंगी, उसमें आपको समझेगा कि मिसिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब तक आप ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ जो मिसिंग वर्ड है वह आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या मिसिंग है, तो किसके बाद में क्या बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन किस में होता है, फिर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है किसी कारण से तो फिर किसका होगा ऑक्सीडेशन, प्रोटीन्स का होगा और लिपिड्स का होगा। तो प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में,
और लिपिड्स फैट्स को ही कहते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में हम स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। तो वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये सारे जो हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन हुआ हो, चाहे अमीनो एसिड्स का हुआ हो प्रोटीन्स के कारण, या फिर लिपिड्स का हुआ हो, तो इन सब के कारण जो भी बनता है वो प्रोडक्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए ही होता है। और ये पूरी प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइंटिस्ट ने क्या किया था बच्चों, ये पूरे रिएक्शंस जो हैं, एटीपी का कन्वर्शन, एनएडीएच कन्वर्शन, एफएडी का कन्वर्शन, ये सारी चीज़ें क्या की थी बच्चों, उन्होंने स्टडी की थी। इसीलिए इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और 3 साइंटिस्ट ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, एम्बिडेन, मेयरॉफ, ठीक है, और पांस में। तो इन तीनों के नाम से बना है ईएमपी पाथवे, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है एम्बिडेन मेयरॉफ पांस पाथवे। तो यहाँ पे आपको ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीश्वसन का फ्लो चार्ट हो गया। अब ये जो कन्वर्ट होते हैं उसके बाद में क्या होती है, एनर्जी हमको प्रोवाइड होती है, जो हम टाइम टू टाइम यूटिलाइज करते हैं। और ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में सेल के। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका भी फ्लो चार्ट दिया है सेम। इसमें ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, दीज आर द 2 important process. In fermentation what happens students, in case of mussels it is converted into lactic acid. When milk gets converted, when we are जब हम दही जमाते हैं ना घर में कर्ड, तो वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड तैयार होता है। और यीस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस में हेल्प करता है, एल्कोहल फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे सॉरी विनेगर जो है ना, वाइन प्रोडक्शन, तो वहाँ पे फिर एल्कोहल प्रोडक्शन, विनेगर प्रोडक्शन, ये अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर, हमको यहाँ स्टॉप करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में वी वांट टू समराइज, वी लर्नड अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस एट बॉडी लेवल एंड सेल्युलर लेवल। देन वी हैव लर्न अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, how this process occurs. So aerobic respiration is having 3 steps: glycolysis, tricarboxylic acid cycle, and electron transfer chain reaction. So this is all about the aerobic respiration. And anaerobic respiration, it requires 2 steps: glycolysis and fermentation. So I hope students you all understood this. Thank you students, we will meet in our next class. हाँ बच्चों, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने माइक ऑन कर लीजिए बच्चों। हेलो, हेलो, हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा बेटा। इसके पहले वाले पार्ट का मैं आज वीडियो डाल दूंगी, वो वीडियो आप अच्छे से देखिए और आज का देखिए। नहीं तो नोट्स में तो डालती छू ना बेटा, नोट्स में तो डालती हूँ ना। जो नोट्स डालते हैं ना, आप लोग पूरा देखते नहीं हो क्या बच्चों? जूम ऐप का मैं अभी करने वाली हूँ बेटा, इसके बाद में मैं लूँगी। आज मेरे पास थोड़ा काम था तो टाइम नहीं हो पाया। तो हाँ, तो आज तो 12 स्टूडेंट्स थे ना हमारे ज्वाइन। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये गूगल मीट रहने दो अपने कन्वर्सेशन के लिए, इसको बंद नहीं करेंगे, साथ साथ में अपन जूम ऐप को डालेंगे, ठीक है। आज मैंने ये घर से क्लास लिया है अपना। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं नोट्स डाल रही हूँ ना, और अपने क्लास ग्रुप पे जो चैनल है वो भी मैंने डाला हुआ है। अगर नहीं देखा होगा तो मैं आज फिर से डाल देती हूँ। तो आप लोग है ना, अपना जैसा साइंस 1 का एक लेसन हो गया है अपना पूरे वीडियो के साथ में, और दीक्षा ऐप से अलग डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने साइंस 2 के अभी, हाँ,
साइंस 2 के अपने 2 लेसन हो गए हैं बच्चों। हाँ, तो अभी मैं ये जो नोट्स भी डाल रही हूँ और वो चैनल डाल रही हूँ, तो उसको आप है ना सब्सक्राइब कर लो। और उसको क्या है कि जितने क्लास वाइज हैं और वही वीडियो खोलना, क्योंकि उसमें सब क्लास के हैं, 9th के भी हैं, 6th के भी हैं। हाँ, तो उसमें बराबर चैप्टर नंबर 1 नाम भी लिखा है मैंने वो वीडियो पे कि कौन से चैप्टर का है। हाँ, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए बेटा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे ना तो अभी टाइम ऐसे ही निकलते जाएगा, फिर कुछ एग्जाम आ जाएगी तो कैसे करेंगे आप लोग, है ना। हाँ हाँ, वो मैं आज ट्राई करती हूँ, उसको फिर से मैं चालू करती हूँ। लेकिन ये भी एक अपने साइड बाय साइड रहने दो, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है। हाँ, अच्छा लगा बेटा, आज 12 बच्चे थे, उस दिन कितने 6 या 7 ही थे। और अभी आप लोग जैसे नंबर बढ़ाएंगे ना तो हमको भी फिर मोटिवेशन मिलता है ना कि हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हमको रिस्पॉन्स तो मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे आप लोग जैसे अभी अपन 24 बच्चे हैं ना 10th बी में, 24 स्टूडेंट्स हैं ना 12th बी में अपने। तो सब लोग जब ऑनलाइन है तो सबने ज्वाइन रहना चाहिए, मेरा कहना ये है। अगर किसी का मेजर प्रॉब्लम है तो उन्होंने मैसेज पे बताना चाहिए या फ़ोन कर लेना चाहिए। तो ठीक है, हमेशा अपन 1 ही बजे लेंगे बेटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन वही है कि आप लोग फिर वो टाइम और बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। और एक क्लास के भी बच्चों को बताओ ना बेटा, थोड़ा सा कोई होंगे कांटेक्ट में, तो मैं तो बता ही रही हूँ। हाँ, उनको भी बताओ। तो अपन क्या करेंगे फिर, हफ्ते में 3 दिन लेते जाएंगे। बाकी लोगों के चलने दो जो डाल रहे हैं पीरियड वाइज, लेकिन क्योंकि 10th क्लास का यदि इतना धीरे धीरे करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ हाँ, और वीडियो है ही अपने फिर, है ना। व्हाट्सएप पे जो बना के डाल रहे हैं वो तो है ही फिर अपने, है ना। हाँ, तो मैं आज है ना, ये जो हमने साइंस 2 का सेकेंड लेसन पढ़ा ना, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पार्ट 2 था। इसके पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1, उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे 10 सिस्टम्स बॉडी में कैसे काम करते हैं, जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ के आए हैं पूरे, है ना। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है, तो वो जो हम भोजन लेते हैं बैलेंस डाइट, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो कितनी एनर्जी मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, है ना। जैसे प्रोटीन से हमको 4 किलो कैलोरी मिलती है ना। हाँ, तो इसी तरह से जो है थोड़ा सा हम लोग जो नोट्स मैं डाल रही हूँ ना, मेरे को बाकी लोगों का तो नहीं पता, पर मैं नोट्स डाल रही हूँ, तो अगर आपने उसको भी पढ़ा ना बेटा, क्योंकि मैंने वो पॉइंट्स में दिया हुआ है, पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। हाँ, तो वो भी यदि आपने कॉपी में लिखा और उसको फॉलो किया ना तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है बेटा किसी के? अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर हम बंद कर देते हैं, है ना। हाँ, हेलो, बोलो बेटा। हाँ, बोलो। क्या चीज? थोड़ा
अच्छा, आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते लेकिन वीडियो खोल के देख सकते क्या? बेटा देखो, आप टेंशन मत लो, हर चीज का मैं वीडियो बनाती छूँ। हाँ विद्या, हेलो विद्या। देखो बेटा, ये सबका अलग अलग रहता है, अपन किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते अभी, है ना। तो बेटा मेरा कहना ये है कि भले ही अपन जूम से ले कि गूगल मीट से ले, जब वीडियो बना के अपन क्लास ग्रुप पे डाल देंगे तो जिसका बाय चांस मिस हो भी जाता है तो वो वीडियो देख सकता है ना, है ना। तो अब थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा ना। नहीं, फिर क्या होगा बच्चों, देखो दोनों दोनों एक साथ, ये तो कैसा कन्वर्सेशन के लिए ठीक है, लेकिन जब वीडियो बनाएंगे तो वो तो आप देख सकते हो ना अपने टाइम के अनुसार। देख सकते हैं ना, इसमें तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना वीडियो देखने के लिए। हाँ हाँ विद्या, बोलो विद्या। कोई बोल नहीं रहा है, अभी 10 लोग हैं इस पर। हाँ देखो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मुझे यही लग रहा है अभी, ठीक है। हेलो, हाँ मेरे को यही सॉल्यूशन लग रहा है कि जिसका नहीं जमता तो वो लोग वीडियो देख लीजिए। हाँ, जूम में बोलो या गूगल मीट पे बोलो, जैसे भी बोलो। चलो बंद करें क्लास, लेफ्ट होते हैं। और जिसको प्रॉब्लम है तो वो लोग मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, है ना। हाँ चलो बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बंद कर।